दक्षिण भारत की पावन भूमि कर्नाटका, जहां स्थित श्रवणबेलगोला में विराजमान हैं भगवान बाहुबली। यहीं जन्म लिया जैन धर्म के युग पुरुष परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने, और वर्तमान में इसी कर्नाटक की पवित्र धरा पर विराजमान हैं मुनि श्री पाय सागर जी महाराज, जिनके मुखारबिंद से खिल रही है कर्नाटका की कन्नड़ भाषा में मंगलवाणी। आप भी रसपान कीजिए समृद्ध वाणी का, प्रतिदिन सुबह 12:40 से दोपहर 1 बजे तक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। जैन सिद्धांत, जैन धर्म ಇವತ್ತು ವರ್ತಮಾನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಇದ್ದಂತೆ. ವೀತರಾಗ ಧರ್ಮ, ನಿಗ್ರಂಥ ಧರ್ಮ, ನಿಗ್ರಂಥ ಧರ್ಮ, ಯತಿ ಧರ್ಮ, ಶ್ರಮಣ ಧರ್ಮ, ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಶ್ರಮಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರೆಲ್ಲ. ಶ್ರಮಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ, ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತಿತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಶ್ರಮಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮನಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಾಗಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಇದೆ, ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಇದೆ, ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿದಾನ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಆತ್ಮ ಇದೆ. ಆ ಆತ್ಮನು ಒಂದು ದಿನ ಭಗವಂತನಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಈ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಬಂಧನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಅರ್ಹತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ತನಕ ಸಂಕೋಚಿತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರದ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ? ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತಲೇ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಗಳ ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋಂಥ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಹಾಕುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಹಾಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಸುವಿನ ಹಾಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಡಿನ ಹಾಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ತುಪ್ಪ ಅವಶ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಏನಿರ್ತದೆ? ತುಪ್ಪ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಇದ್ದುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಆದರೆ ಯಾವ ಹಾಲಿನ ತುಪ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೊರ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಶ್ರಮಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ,
ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಈ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದವರಿಗೆ ಜೈನರಿಗಷ್ಟೇ ಮೀಸಲಾಗೈತೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮನು ನೀನು ಭಗವಂತನಾಗಬಹುದು. ತಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ತಾವು ಭಗವಂತರಾಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಶ್ರಮಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶ್ರಮಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ಮೋಹದಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಹೀಗೂ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದ್ದರೂ ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಕೆಲವರ ಮುಖದಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಏನಂದಿರ್ಬೋದು? ಕೆಲವು ಧರ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಚಾರದರು, ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಚಾರದ ಬುದ್ಧಿವಂತವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ತಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮನೇ ಅದೇ ನಮಗೆ ಇದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಹದ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ. ಏನು ಬರ್ತಾವ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನದು ಪರದು ಅನ್ನೋದೇನು ಬಂತ, ಮೋಹನ್ಸಾಲಿ ಬಂತಲ್ಲ. ಏನು ಬಂತ? ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆಯಾ ಹಾಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹುಳಿ ಏನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟು फोडणीट हाकन फोडणीट हाकला फोडणीट टाकला तर काय होणार, कोणचा स्वाद येणार, काय येणार, तुमचा स्वाद काय येणार, बगाड़ दे दिया. हमारे आचार्य भगवान कहते हैं छोक देना यानी बगाड़ देना यानी बिगाड़ देना उसका स्वाद को. ಯಾವುದರ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾದ ಇತ್ತ ಅದನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಬಿಟ್ಟವು. ಏನು ಮಾಡ್ದವು? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೀರೆಕಾಯ್ದು ರುಚಿ ಬರ್ತದೋ, ಉಪ್ಪಿಂದ ಬರ್ತದೋ, ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅದ್ರಾಗ ಇದನ್ನು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಬರ್ತದೋ, ಹಿಂಗಿಂದ ಬರ್ತದೋ, ಒಗ್ಗರಣೆ ತುಪ್ಪದ ಬರ್ತದೋ, ಎಣ್ಣೆದು ಬರ್ತದ, ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಬರೋದ? ನಾವು ಕಿಚಡಿ ಮಾಡಿವಿ महाराज. हम खिचड़ी बना लिया, तुमने खिचड़ी बना लिया तो दाल का स्वाद आएगा तुमको. आपको स्वाद किसकी आएगी? चावल की आएगी, किसकी आएगा? तू खिचड़ी तू बना लिया, वही अच्छा लगता महाराज जी हमको. अच्छा लगता तू रख लो, कोई बात नहीं. तुम्हारे मोह के कारण तुम अच्छा मान रहे हो. वस्तु तिथि का सही सही ज्ञान आपको नहीं हो सकता. वस्तु स्वभाव धम्मम, वस्तु स्वभाव और ये स्वभाव तक हम नहीं पहुंच पाते. कारण हमारे वीक पॉइंट क्या है? वीक पॉइंट मतलब ये है दोष हो तो भी हमारा ही ठीक है. ये श्रमण संस्कृति इसको स्वीकार नहीं करता है. किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थान पर कोई अंश दोष हो तो उसको स्वीकार नहीं करेगा. घी में एक बूंद भी मान लो थोड़ा से भी पानी का अंश भी रहे तो उसको दीपक के लिए आपने आरती करोगी, उस छट 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 आवाज करता रहता है. इसीलिए दोष नहीं होना ही श्रमण संस्कृति कहता है. निर्दोषता की प्राप्ति ही श्रमण संस्कृति का मूल सिद्धांत है. क्या है? मूल सिद्धांत का कोई हमारे तुम्हारे घर का नहीं होता सिद्धांत. हमारे आचार्य भगवान कहते हैं ये तो हमारा सिद्धांत है, तुम आपका सिद्धांत है तो आपके घर में रखो ना.
इधर नहीं चलता। मोक्ष मार्ग में किसी का सिद्धांत चलने वाला नहीं होता। मोक्ष मोह मार्ग में सब कुछ हो सकता। क्या हो सकता है? जैसे आप वस्त्र पहन रहे, एक अपराध, उसके ऊपर ये काला होना चाहिए, ये सफ़ेद होना चाहिए, ये रंगीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये रंग रंग बगैरे के होना चाहिए, बहुरंगी होना चाहिए। उसका क्या है, शाइनिंग क्या है उसकी, ये क्या है, किस कंपनी से बनाया है, क्या करना। देखो, वस्त्र पहनना गृहस्थों के लिए अपराध अवश्य, फिर भी वो क्षम्य है। क्या है? वस्त्र का ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना, चले साफ सुथरा पहनना भी ठीक है, आपके लिए अपराध तो है तो वो क्षम्य है, चलो कोई बात नहीं। उसमें नीली डालने का, क्या डालने का है, फिर उसके ऊपर इस्त्री करवाना है, क्या है, कौन सी बात आ गई? वो भी इस्त्री करते समय कहाँ से करना चाहिए, किधर उसको उठाना चाहिए, आखिर उसको भी मोड़ना चाहिए, ये सब क्या है, अक्षम्य अपराध माना गया है। क्या माना है? स्वीकार तो कर लो मैं अपराधी हूं, इतना तो स्वीकार करो मैंने अपराध किया है, मुझे इस अपराध से मुक्त होना है। आप इतना तो स्वीकार तो करिए अपने जीवन में, कम से कम मैं अपराधी हूं। हो सकता आप एक दिन इस अपराध से मुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यदि आपके पुरुषार्थ, प्रभु कृपा, गुरु कृपा यदि आपके ऊपर हुआ तो हो सकता आप इससे छुटकारा पा सकते। नहीं सकते? अवश्य पा सकते हैं। मैं यही कह रहा था, आज का विषय महाराज जी आपने कहा था दूसरे बताएंगे। किसका? डायनासोर। हाँ, डायनासोर क्यों लुप्त हुआ, किस कारण से लुप्त हुआ, इसके बारे में मुझे एक बार कुछ अध्ययन के बारे में मिला। कोई उसका नाम कोई छिपकली बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, कोई कन्नड़ भाषा में हल्दी बोलते, कुछ और दूसरे भाषा में, कन्नड़ में भी कोई दूसरा नाम होगा, उस समय कोई चीज होगा। इतना लंबा चौड़ा बड़ा कोई जानवर था, वो क्यों चला गया, कहीं ना तो कहीं रहना था। इसका कारण ये बताते हैं, एक समय पर शीत युद्ध चला, बताते हैं। सुन रहे क्या नहीं भैया? रिकॉर्ड बनाने वाले, हिंदी में बोल रहा हूं, सुन रहे क्या नहीं? अभी बोल रहे थे भैया महाराज मैं तो अभी आपके आशीर्वाद से मैं भाग जा रहा हूं। अरे भैया, मैं भाग जाने के लिए आशीर्वाद थोड़ी दूं, मोक्ष जाने के लिए आशीर्वाद दे दूंगा। क्यों? सुन रहे हो ना? हाँ, अच्छा, तो मोक्ष जाने के लिए तो आशीर्वाद दे दूंगा, तुम भाग जा रहे तो घर छोड़ने के लिए आशीर्वाद अवश्य मैं दे दूंगा। घर जाने के लिए मेरा कोई आशीर्वाद किसी का भी नहीं है बंधु, याद रखना। घर बसाने के लिए हमारा आशीर्वाद नहीं होता, घर छोड़ने के लिए अवश्य मैं आशीर्वाद दे दूंगा। क्या दे दूंगा? हाँ, तो ये हमारा आशीर्वाद उसके लिए जिसको अपना घर बार छोड़ के जा, अपने जो इधर रहते हैं ये तो अपना फालतू घर है, वहाँ जो रह रहे हैं वो अपना घर कहाँ, मोक्ष में, ताकि जिस घर में हम जाएंगे ना फिर वापस ना आना पड़े। क्या है? ताकि आज घर में रहो,
आज सुना है, कौन सा, उत्तर अफ्रीका ना, उत्तर अफ्रीका में कल भूकंप हुआ बताते, हजारों लोग समाप्त हो गए। घर बनाया, क्या करोगे? हाँ, तो करोगे क्या? कुछ दिन पहले तुर्की में देखते देखते देखा, मैंने भी देखा, ऐसे बिल्डिंग कितने 50-100 अंतस्त की, मंजिल की, 50 मंजिल 100 मंजिल की बड़े बड़े बिल्डिंग। 1 मिनट पहले देखता तो रिकॉर्ड कर रहा है, वो दिख रहा है पूरा, जैसे पतझड़ के पत्ता जैसा धराशायी हो गया। अब क्या करोगे? इसीलिए संसार के इच्छाएं अनंत काल से है, वो कभी किसी के पूर्ति नहीं हो सकता। इच्छाएं अनंत, किसी की पूर्ति नहीं होता। जीवन निर्वाह नहीं, निर्वाण के लिए पुरुषार्थ करो, तो यही है मोक्ष की पुरुषार्थ करो। डायनासोर था तो फिर आपने पूरा बताया ही नहीं महाराज, हमको तो वो तो बताओ, बाकी तो ठीक है। तो मैंने पढ़ा था, ऐसा सुना था, किसी समय शीत विद्ध नाम का कोई विद्ध हुआ। शीत विद्ध का मतलब क्या होता है? कोई किसी मानव से नहीं, प्रकृति द्वारा कई महीनों 6 महीने तक शीत लहर चलती रही। उसी समय ही उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव बना, ऐसा अभी मान रहे हैं। विज्ञान का भी यही कहना है। उस शीत युद्ध में छोटे छोटे जीव जंतु, तो कहीं मनुष्य, कहीं थोड़ा आश्रय मिला, रह गए। और इतनी बड़ी बड़ी, वो भी उसका रहने का भी कुछ एरिया प्रांत होगा। हर जगह में हर जीव नहीं होते। जो है ना, कस्तूरी मृग होता है, समुद्र से करीब 8,000, 10,000, 12,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 20,000 फुट ऊपर पर्वतों पर रहते बताते हैं। ऐसे ही हम आप सब के लिए भी भगवान से भी हम प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव से भी हमें प्रार्थना यही करते हैं, हम आप सब के लिए सद्बुद्धि प्राप्त हो, वो सिद्धत्व शुद्धत्व हम आप सब के लिए उस मोक्ष की प्राप्ति हो, वो भगवत तत्व की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। दक्षिण भारत की पावन भूमि कर्नाटका, जहां स्थित श्रवणबेलगोला में विराजमान हैं भगवान बाहुबली। यहीं जन्म लिया जैन धर्म के युग पुरुष परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने। और वर्तमान में इसी कर्नाटक की पवित्र धरा पर विराजमान हैं मुनि श्री पाय सागर जी महाराज, जिनके मुखारबिंद से खिल रही है कर्नाटका की कन्नड़ भाषा में मंगलवाणी। आप भी रसपान कीजिए समृद्ध वाणी का, प्रतिदिन सुबह 12:40 से दोपहर 1 बजे तक सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल साड़ी एंड क्लॉथ मर्चेंट एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार, चारचंद जिला, विजयपुर। कॉन्टैक्ट 9448194473। मुनि श्री पाय सागर जी महाराज की मंगलवाणी को संपूर्ण चारचंद जिला, विजयपुर, कर्नाटका में जन जन तक पहुँचाने के लिए धर्म प्रभावना के इस महान कार्य के प्रेरक समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार की हृदय से अनुमोदना।